Okay. So a very good morning to all of you. So yesterday we had done a topic from this chapter, that is lesson number 1 of your book. What is the name of the book, Rohan? What is the name of the book? Politics in India since independence, and we are doing the first chapter, that is challenges of nation building. So the topic for the day is going to be reorganization of states. This we'll talk about later on. Let's take a short glimpse what are the topics we have covered till now, so that you will be able to understand the structure of the chapter, because this first chapter is important from the point of view कि इसका structure क्या है. So it's important. So in the very beginning, after discussing the title of your book, that is Independence in India, Politics in India since Independence, I told you that there are multiple challenges which our country was facing just after independence. So those multiple challenges, it would have been difficult to remember each one. So we have categorized them, classified into 3 broad categories. So what were the 3 broad categories? Can anyone answer me? What was the first category, Rohan? The challenges which our nation was facing. Rohan, which was the first category? हमने 3 ग्रुप बना लिए थे, 1, 2, 3, and within this there were certain list of problems बोल सकते हैं. These are the challenges. हमने divide कर लेते 1, 2 and 3, and within these each challenge there were some other challenges. Okay, so what were those multiple challenges? So first set, इस set का नाम क्या था? And you have this Aman. The challenges of national building. So we can write here nation building. Nation building. Okay. Then second में challenge संध्या. What was the second challenge? Very good. Establishing democracy. Establishing democracy. And what was the third challenge which we have to study in this book? Akshita, do you have any idea? Huh? Development. Development in terms of development, political, social, economic development, and basic challenge उसके अंदर जो आता है हमारे eradicating poverty, because poverty was the other thing, and we had to eradicate poverty. That was the very first challenge. So after this is the structure of the book. First 3 chapters, that is what were the challenges. Challenges were multiple challenges, but and we have classified them into nation building. First was important was nation building, then establishing democracy, then development. But this we are studying in chapter number 1. This establishing democracy is studying chapter number 2. And about development, 5-year plans and all those will study in Niti Aayog. New topic has been added in this, that will study in 3rd chapter, that is planning development. ठीक है? तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1. It means we are just studying the first challenge of nation building. So what are the challenges? अगर मैं बोल रहा हूँ ये nation building है first challenge. So what are the topics we are studying under this? Which is the first topic we have talked about here? Partition. Partition के आगे क्या था? Displacement and rehabilitation. ठीक है, तो इसके अंदर these 2 also. तो इसमें complete process and problems of partition आ जाएगा इस टॉपिक के अंदर. ठीक है, displacement कैसे हुआ, rehabilitate, how we have rehabilitation given to those people who are refugees. Complete process we have discussed under this topic, partition. Then yesterday we had this is the second important challenge, that was integration of princely states. I will finish off. Okay. And today third challenge is reorganization of states. ठीक है. So I hope the concept is clear. How we are proceeding with the chapter, because this is important. इससे many 1 mark questions will be there, many MCQs will be there, because उसमें आपके format में दिया हुआ भी होता है किस chapter में for how many marks questions will be given. I will forward you that also, or I will tell you in the class. Okay, so let's take it from your NCERT book then. I will keep reading and explaining it to you line by line. The process of nation building. So talking about let me tell you reorganization of states. So suppose इसको एक बॉक्स को मान लो, मैप ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल.
So Britishers had divided the territories of India according to their convenience. जिसमें उन्हें फायदा हुआ, like they entered India, they captured this part. इतने पार्ट को उन्होंने कैप्चर किया forcefully, so they made this territory. Then again they captured one more part of India. They made this as their territory. Then this part. So according to their convenience and according to their administrative easiness, जहाँ पे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को कंट्रोल करने में इजी हो, ऐसी जगहों पे दे फॉर्म देयर एसोसिएशंस विद ओके. सो इफ यू टॉक अबाउट द ब्रिटिश इंडिया, जब हम वी वर कॉलोनी, सो इंडियन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिटिशर्स. वो जहाँ पे आए जितने एरिया को कैप्चर कर लिया उन्होंने उसको अपना ही पार्ट बना लिया एंड दे कॉल्ड देम एज प्रोविंस. ये प्रोविंसेस हो गए. कुछ क्या आते हैं वहां पर? प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स भी किसकी टेरिटरी थी? अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ किंग, नवाब, निजाम जो भी थे, ठीक है, राजा, उनके अकॉर्डिंग थी. तो इस तरीके से बाउंड्रीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्रिटिश इंडिया. और वो चल रहा है क्योंकि डोमिनेंस किसका था? ब्रिटिशर्स का था. नो वन कुड प्रोटेस्ट. अलाउड ही नहीं था बिकॉज़ दैट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. दैट वाज अ डिक्टेटर टाइप ऑफ और ऑटोक्रेटिक सिस्टम. So but after we gained the independence, we attained the independence. Now after this challenge, after integration of princely states को हमने साथ जुड़ा लिया, they merged with Indian Union now. So now next challenge was reorganization of states. अब ये इंडिया के अंदर जो sections हैं, इनको हमें किस बेस पे डिवाइड करना है? Because now in a democratic country, everyone had the right to speak and expression. So they were protesting against some cultural values, some customs, languages के basis पे सब were demanding various states. So now it became a challenge for the government, the first government, that how they have to distribute the territory within internal distribution. So basically इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? Internal distribution. Because before this integration of princely state, हमने ये तो confirm कर लिया कि ये हमारी country क्या हो गया है? Integrate हो गई है. External boundaries हमारी secure हो गई है. इससे no more faction जो है अलग नहीं हो सकता. Princely states को we have merged in the Indian Union. इतना secure. अब the next challenge was कि अंदर इसके अंदर किस तरीके से we will make distribution, which pattern, which procedure will be used. So in this topic we will talk about the reorganize. The term को समझो. एक तो organize क्या होता है Britishers ने. Now we have to reorganize it. और reorganize कैसे किया? That completely we will understand in this. So the process of nation building did not come to an end with the partition and integration of princely state. ये कह रहे हैं अगर हम पहला challenge पढ़ रहे हैं nation building का, that did not come into end कि हमने partition की बात कर ली. We had talked about integration. इतना ही काफी नहीं था, but एक और challenge था इसी के अंदर, वो क्या था? Reorganization of states. Now the challenge was to draw the internal boundaries of Indian states. This was not just a matter of administrative division. ऐसा नहीं था कि बस इंडिया को रन करने के लिए हम अपनी मर्जी से कोई से भी टेरिटरीज बना देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं. बट यहाँ पे बहुत सारे क्या पे डिजायर्स थी, ड्रीम्स थे, गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे लोगों के अपने अपने एरिया से रिलेटेड. ठीक है. द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन. अब बाउंड्री कैसे बननी चाहिए थी? देखिए पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव के अकॉर्डिंग बन जाती थी ब्रिटिशर्स के अंदर, बट नाउ इन इंडिपेंडेंट इंडिया this was not just a matter of administrative division. The boundaries had to be drawn in a way so that the linguistic cultural plurality of the country could be reflected. हमारी हमारा क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम? इंडिया हैड ह्यूज डाइवर्सिटी. तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट शुड बी डन इन सच अ वे कि जो हमारा कल्चरल डिफरेंसेस है, हमारे लैंग्वेजेस डिफरेंट है, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए इंडिया में. क्योंकि इंडिया को माना जाता था कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है. तो ऐसा ना हो कि लैंग्वेजेस और कल्चर के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, टेंशंस होने लगे, तो इंडिया तो यूनाइटेड नहीं रह पाता. तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि जो हम डिवीजन कर रहे हैं बाउंड्रीज का, दैट शुड बी डन ऑन इन कीपिंग इन माइंड कि जो ये कल्चरल वैल्यूज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट कस्टम्स के लोग हैं, इनको इंपॉर्टेंस दी जाए, इनको एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट किया जाए. So the boundaries have to be drawn in such a way so that the linguistic cultural plurality का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम मल्टीपल कल्चर्स थे, ठीक है, इनको ध्यान रखते हुए the country could be reflect without affecting the unity of the nation. So we have to divide India into various states in such a way उससे हमारी यूनिटी डिस्टर्ब ना हो, हमारी डाइवर्सिटी हमारे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और वो मेंटेन रहे. हम स्टेट्स को इस तरीके से डिवाइड ना करने की हाफ कल्चर के लोग एक स्टेट में आ गए, आधे डिवाइड हो गए. तो वी हैव टू ड्रॉ इन सच अ वे कि एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग हैं, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनको सेपरेट स्टेट देने की कोशिश की जाए. क्योंकि अगर हम इंटरमिक्सिंग कर देते तो वहां पर फिर यूनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है. दिस वाज द बेसिक आइडिया. अभी सोचा था बस, ये हुआ नहीं है. सो ड्यूरिंग colonial rule, now they explaining colonial rule में कैसा था. जब ब्रिटिशर्स थे,
during colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience, as I told you, state boundaries जो बनी हुई थी बंगाल प्रोविंस, ठीक है, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, बिहार प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, so वो सब बना हुआ था, ड्रॉ किया हुआ था according to the convenience of the Britishers. Simply coincided with the territories annexed by the British government or by the territories ruled by the princely powers. ये पूरे जिन पावर्स को उन्होंने एनेक्स किया था, कब्जा किया था, टेरिटरी वो स्टेट्स बना दी या कुछ जगहों पे प्रिंसली स्टेट्स ऑलरेडी थे, तो इस तरीके से इंडिया का डिवीजन हो रखा था. Our national movement had rejected these divisions as artificial, but जब हमारा नेशनल स्ट्रगल चल रहा था, so our freedom fighters, our important leaders, they had rejected the distribution of India which British India के अंडर था. उसको हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल डिवीजन और आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. उन्हें लगा था वो ट्रू जो वैल्यू इंडिया का दिखती है बेस्ड ऑन द कल्चर लैंग्वेज, उसको रिप्रेजेंट नहीं करती है ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज. ठीक है, तब तो हम कॉलोनी थे तो वी कुड नॉट डू एनीथिंग, बट दे हैड डिसाइडेड वंस वी गेट इंडिपेंडेंट वी विल रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स इन सच अ वे जिससे हमारी क्या रिफ्लेक्ट हो, हमारी कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल डिफरेंसेस, हमारी डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो, बट हमारी नेशनल यूनिटी भी मेंटेन रहे साथ साथ. अब कल्चर के बेसिस पे हम स्टेट्स को डिवाइड करेंगे डजंट मीन कि हम अलग अलग फैक्शंस बना रहे हैं. डिवीजन भी इस तरीके से करना है कि हमारी यूनिटी जो नेशनल यूनिटी है वो भी मेंटेन रहे. Our national movement had rejected the division of artificial and promised the linguistic principle. So this can be the one mark question कि which was the principle used for the reorganization of states. अब आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया पर एक चीज एक वर्ड पे ध्यान नहीं दिया कि कौन सा एग्जैक्ट प्रिंसिपल था. तो एग्जैक्ट प्रिंसिपल कल्चरल और ये सब में लिखोगे एग्जैक्ट प्रिंसिपल यू विल राइट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था. ठीक है, so the national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states. Like we have to form the states, we have to reorganize the states. The principle which will be used is linguistic. Linguistic means क्या होता है अमन? Linguistic means on the basis of the different languages spoken by India in the different parts of India. That is going to be the base of reorganization of the states. ये decide हुआ है, अभी हो नहीं रहा है. Like they are discussing कि हम independence के बाद क्या करने वाले हैं. In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was reorganized. Recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself. Now एक सेशन हुआ था नागपुर में in 1920. In that session it was decided, states तो दूर की बात है, even the Congress Party will establish its parties अलग अलग जगह पे. एक कांग्रेस की पार्टी तो कांग्रेस का डोमिनेंस में रहा इंडिपेंडेंस के 3 जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए कंटिन्यूअस. तो उससे पहले भी कांग्रेस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे आगे फोर्थ फ्रंट में था. तो उनकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होंगी अलग अलग. तो दे हैड फॉर्म इन अदर पार्टीज इन सच अ वे जो लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करती थी. इस एरिया में अगर तेलुगु बोलने वाले लोग हैं तो जो यहाँ पर उनकी कम्युनिटी बनेगी, जो टीम बनेगी कांग्रेस की, वो कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में बनेगी? तेलुगु. अब पंजाब में है पंजाब बोलने वाली, यूपी में जो जिस रीजन की लैंग्वेज थी उन्होंने अपनी कम्युनिटी उन्हीं लोगों से मिलकर के बनाई. सो दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर और दिस प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर फॉर्मिंग देयर पॉलिटिकल पार्टीज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. तो उन्होंने बोला था दिस सिस्टम वी विल आल्सो कंटिन्यू वंस वी अटेन द इंडिपेंडेंस. हम स्टेट्स भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाएंगे जब अपने पॉलिटिकल पार्टीज इस बेस पे बना रहे थे. और इट बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो अगर लोकल गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, लोगों को अगर समझना है तो वहाँ पे लोग कौन होने चाहिए, वहीं के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए ना. सो इन द सेम वे. So in the Nagpur session of Congress in 1920 इसको समझना जो लिखा हुआ है, principle was recognized as the base for the reorganization of the Indian National Congress Party itself. तो Indian National Congress Party ने itself इस फॉर्मेट को फॉलो किया था. ठीक है. Many provincial Congress committees were created by linguistic zones. Same thing, which did not follow the administrative divisions of the British India. They did not follow the administrative divisions which were done by the Britishers. But freedom movement जब हमारा चल रहा था तो कांग्रेस ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दी थी अपनी लिंग्विस्टिक बेस पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कमिटीज हो सकते हैं. थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. अब क्या हो गया, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन आ गया. ये जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, ये इंडिपेंडेंस से पहले जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था. नाउ थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. Our leaders felt that carving out the states on the basis of language might lead to a disruption and disintegration. Now the things change, the ideas, the principles change in on the mind of the freedom fighters or the leaders या prime minister जो हमारे उस टाइम पे थे. Why? Because of an important event. कौन सा event हो गया था? Partition. No one had ever thought of this event, painful event of partition. तभी हमने बोला था our independence came or the freedom came with partition. तो जब पार्टीशन हो गया तो फिर आइडिया चेंज हो गया हमारा. हमने सोचा
अगर if we reorganize the states on the basis of the language, maybe situation ऐसी है, लोगों को एक आइडिया मिल चुका है, other states can demand independence, can demand separate states for themselves, they can demand various autonomy, like they will say that you have given Pakistan a separate state for Muslims, we want for Punjab, we want for Madras, Telugu speaking people, different culture था, different languages थी, तो ये माइंड में आ गया, डाउट आ गया, तो इसको इन्होंने क्या सोचा, अभी रीऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, अभी लेट इट बी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ब्रिटिशर्स की बनी हुई है, लेट अस कंटिन्यू अभी ऐसे ही, अभी लेट्स फोकस ऑन दीज टू चीजों पे, डेवलपमेंट पे, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी पे, एंड इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वही मैं पढ़ रहा हूँ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और ये रखना क्यों पोस्टपोन किया, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन से माइंड में क्या आ गया था, लोगों के अंदर maybe many people of the other different culture or language could have thought that हमको भी एक अलग independent state चाहिए, और इस point of time पे अगर हम reorganize कर देते on the basis of the language, maybe India would have disintegrated into many other factions or fragments, which India did not want, क्योंकि पहला challenge हमारा क्या था, हमें nation को build करना था, ठीक है, तो यहाँ पे इसको postpone किया. Things change after independence and partition. Our leaders felt that carving out states, carving मतलब states को बनाना, अगर हम अलग अलग स्टेट्स को बनाते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, जैसे यूएसएसआर का हो गया था, इंडिया का डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है अगर हम रीऑर्गेनाइज करें स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, हो जाता, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू में वो करेक्ट डिसीजन नहीं होता, बिकॉज ऑफ जस्ट क्या हुआ था हमारी कंट्री में, पार्टीशन हुआ था, वो रीजन याद रखना कि क्यों अपोज किया, क्यों मना किया. It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges. They also thought कि इस टाइम पे one more important challenge is development. We have to look for economic, political and social development and changes in the society. बहुत ज़्यादा poverty है, poverty से लोगों को ऊपर लाना है, education को increase करना है. These were some of the other major challenges. उन्होंने बोला reorganization states we can postpone, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं. So that is why it was also felt that it would draw attention away from such social and economic challenges that country face. The central leadership decided to postpone. So there are central leadership, जो major government उस type of decision making कर रही थी, they decided finally to postpone this matter. Okay. And the need for postponement was also felt. जो postpone किया उसका एक reason और था, because the fate of the princely states had not been decided. अभी तक हमने उसी कल पढ़ा था about हैदराबाद, अभी मणिपुर and which were the other states, Kashmir and Junagadh. इनका जो रिजल्ट आया था फाइनली कब आया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, किसी का 49 में, किसी का 50 में, तो इट टुक सम 2 or 3 years टू मर्ज दीस प्रिंसली स्टेट्स टू इंडिया. सो दे सेड अभी हम वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ एरियाज और कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैव नॉट एग्रीड टू मर्ज विद इंडियन यूनियन. जब सारी प्रिंसली स्टेट्स का एग्रीमेंट आ जाएगा देन वी विल आल्सो थिंक ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द स्टेट्स. तो एक रीजन ये भी था, वो भी था, ये भी था. तभी लास्ट टाइम में लिखा है, देखिए, रीड इट अगेन. The need for postponement was also felt because the fate, किस्मत, ठीक है, of princely state had not been decided. Also the memory of partition was still fresh. So दो reason हो गए, एक partition की जो memory थी it was fresh. We did not wanted our country to distribute it into any more fractions or get distributed. And also other reason was still there were few princely states जिनका final decision नहीं हुआ था. तीनों का फाइनल डिसीजन नहीं होता. हैदराबाद वाज एट द सेंटर ऑफ इंडिया, सो हाउ कुड वी डिस्ट्रीब्यूट स्टेट्स. सो वी वर आल्सो वेटिंग कि एक बार प्रिंसली स्टेट्स सारे मर्ज हो जाएं. और हमने कल पढ़ा था ना, बाय 15 अगस्त मैंने बोला था 1947 तक ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स हैड मर्ज विद इंडिया एक्सेप्ट 4. तो 4 को कितना टाइम लगा, कोई 47 में, 48, 49, 50 में, ठीक है. सो दिस वाज द रीजन इसको पोस्टपोन कर दिया. बट पोस्टपोन होगा नहीं, हम देखेंगे देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे वेयर इंडियन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू फॉर्म अ कमिटी एंड दैट कमिटी वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, और हमको अपने स्टेट्स को बांटना पड़ा, ठीक है. देखिए, दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स, but now the local people in the various parts of India, they were not happy with the decision of the government to postpone this reorganization. People did not wanted to live in a mixed form. They wanted that उनकी territories clarify हो जानी चाहिए within India. They should get a separate state, especially for people speaking a different language. They wanted a separate state. तो जैसे government ने बोला we are postponing it because of these 2 important reasons or 3 reasons. Economic, political, social challenges भी था third issue. So उसके वजह से हम postpone कर रहे हैं.
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सम लोकल लीडर्स ने चैलेंज कर दिया इसको, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास। अगर आप मैप में देखोगे मद्रास वाला रीजन, ओके ये है ऑन द नेक्स्ट पेज, नीचे दिख रहा है मद्रास वाला पार्ट, बिल्कुल तमिलनाडु वाला जो हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। इट्स रिटन ओल्ड मद्रास प्रोविंस, दिस वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट, इट वाज अ प्रोविंस व्हिच वाज रन डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो पीपल लिविंग हियर हु यूज्ड टू स्पीक तेलुगु लैंग्वेज, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो हम मद्रास प्रोविंस दिख रहा है आज की 2-3 स्टेट की टेरिटरी को कवर कर रहा है, फिर उसमें से 2-3 स्टेट को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दे स्पोक, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखते हैं, प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस व्हिच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। दिस 4 स्टेट्स का कुछ पार्ट्स मिला करके पूरा मद्रास हुआ करता था। तो उसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, सो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्टपोन करना चाह रही थी, बट वी आर सीइंग हियर एज इट वाज अ नाउ डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग व्हिच दे वर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बिकॉज़ वी वर अ कॉलोनी, वी वर लिविंग अ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके। सो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, कौन सी लैंग्वेज वाले लोग बोलने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सो प्रोटेस्ट बिगिन इन तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस व्हिच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। द विशाल आंध्रा मूवमेंट, इस मूवमेंट का नाम क्या था? द विशाल आंध्रा मूवमेंट इसलिए था बिकॉज सेपरेट स्टेट मांग रहे थे तेलुगु स्पीकिंग लोग, और वो स्टेट का नाम क्या रखना चाहते थे? आंध्र प्रदेश। देखिए फिर द विशाल आंध्रा मूवमेंट एज अ मूवमेंट फॉर द सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड। आंध्र प्रदेश को फॉर्म करने के लिए एक मूवमेंट चला, उसका नाम क्या चला? आंध्रा, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ओके। Demanded that Telugu speaking area should be separated from Madras. They said all those people who speak Telugu, they should be separated from Madras. Madras और उनके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंट हमें लगता है साउथ इंडिया एक जैसी लैंग्वेज नहीं है, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, तभी तो अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड किया फॉर अ सेपरेट आंध्रा, demanded that Telugu speaking people should be separated from Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province. They wanted कि हमारा एक separate province मतलब state ही होता है, ठीक है, state बनाना है। Nearly all the political forces in Andhra region were in favor of linguistic reorganization. So all the political parties, all the socialist activists जितने भी थे, many freedom fighters also who were a part of that particular region, they were in support of reorganization of the state, especially of Andhra Pradesh on the basis of their language. तो लोगों ने बहुत support किया against the government decision. So nearly all the political forces of Andhra region were in favor of linguistic reorganization of then Madras province. मान लीजिए ये मद्रास प्रोविंस था, ठीक है। तो इसका एक पार्ट कौन मांग रहे थे? ये यहाँ पे तेलुगु बोलते होंगे ऑलरेडी, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है। यहाँ से जितने पॉलिटिशियंस थे, they were against the पोस्टपोनमेंट वाली जो पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की, उसके अगेंस्ट है। दे वांटेड कि अभी यहाँ पे जो तेलुगु वाले बोलने वाले लोग हैं, इनको एक अलग स्टेट दिया जाए, उसका नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। एंड द मूवमेंट का नाम क्या था रोहन? Movement for reorganizing a separate state for Andhra Pradesh for the people, Vishal Andhra, okay, okay. Now the movement, अब इसी की आगे स्टोरी चल रही है, क्या होता है? The movement gather momentum as a result of the central government's vacillation. Vacillation क्या होता है? Inability to decide. Central government was not able to decide what to do. Different opinions are there. Central government was like confused. It was having multiple opinions. सो द मूवमेंट आगे बढ़ता गया, प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग होता गया यहाँ पे साउथ इंडिया में। यहाँ पे अब एक लीडर थे इंडियन पोती श्रीमुल्लू, नाम याद रखना है इनका, अ कांग्रेस लीडर, ही वाज अ कांग्रेस लीडर फ्रॉम दिस सेम पार्ट, आंध्रा वाला जो पार्ट है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, ही बिलोंग टू दिस रीजन ओनली, यस कमिंग अ कांग्रेस लीडर एंड अ वेटरेनियन गांधी, ही यूज्ड टू फॉलो गांधी आइडियोलॉजीज, जो फॉलो करते थे वो गांधीयन थे, ठीक है। Went on a infinite fast, गांधी जी फास्ट पे चले जाते थे ना, तो he used to follow his ideology। उसने बोला अगर यहाँ पे ये स्टेट ऑर्गेनाइज नहीं होता है on the basis of
तेलुगु लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन होता हो तेलुगु स्पीकिंग पीपल का इन द मद्रास प्रोविंस, बहुत बड़ा प्रोविंस था। सो दे स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें इनके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, इन किस पे चल गए, इन्फिनाइट फास्ट। इन्होंने बोला जब तक मैं भूख हड़ताल कराऊंगा, जब तक हमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सेपरेट स्टेट बना करके नहीं देते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे एक मूवमेंट बढ़ता जा रहा है फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट स्टेट्स। ऑल्दो गवर्नमेंट वांटेड टू पोस्टपोन इट, बट एट द लेवल ऑफ द पीपल and people had started asking for different states. A Congress leader and a veteran Gandhi went on an infinite fast that led to his death after 56 days. Now you have to remember, he went on fast, तो गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं मानती है, 56 डेज बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ। और किसी की डेथ हो गई अगर फास्ट करते करते, तो यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ द पीपल। यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा, लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्मोइल हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, अनरेस्ट हो गया हमारी कंट्री में। सो गवर्नमेंट फॉर मोर वॉरेंट नाउ कि ऐसा ना हो कि हम यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट अगर चलते रहे और इस लेवल पे इंक्रीज हो गए, तो देयर कैन बी इजीली डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी फर्दर मोर, जो कि हम रोकना चाह रहे हैं। तो हमारा जो प्लान्स है, पॉलिसीज है, इट कैन बी ऑन द रॉन्ग ट्रैक। सो दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट, रिजल्ट इन वॉयलेंट आउटबर्स्ट इन द आंध्रा रीजन। इस रीजन में बहुत ज्यादा वॉयलेंस हो गया। People in large number took to the streets, लोग रास्तों पे आ गए, ठीक है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। Many were injured or lost their lives. Many people were injured, many lost their lives in police fighting. पुलिस के अगेंस्ट चल रहा था ऐसा प्रोटेस्ट। In Madras, several legislatures resigned the seats. जो इस रीजन के legislatures थे, पार्लियामेंट में थे, हमारे गवर्नमेंट में थे, they resigned. They said we are not the part of the government anymore. यहाँ पे हमारा एक लीडर था कांग्रेस का, वो प्रोटेस्ट कर रहा था, इन्फिनाइट फास्ट में था, ही पास अवे, स्टिल हमारा एक स्टेट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स थे, एमएलए एमपीज जैसे होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, दे ऑल रिजाइन फ्रॉम देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। फाइनली इतना प्रेशराइज हो गया प्राइम मिनिस्टर, फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट स्टेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। याद रखना, आंध्र स्टेट हमारा बना दिसंबर 1952, क्योंकि यहाँ से कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अभी एक स्टेट बना है बस 1952 में, फोर्सफुली, क्योंकि सिचुएशंस वर सच वर्स्ट देयर दैट इट बिकेम इंपॉर्टेंट कि जल्दी से जल्दी इसको स्टेट डिक्लेयर कर दे। और कौन से स्पीकिंग लोग थे ये, विच लैंग्वेज, तेलुगु, याद रखना, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग लोग। आंध्र प्रदेश बनाया, इंपॉर्टेंट लीडर का नेम कांग्रेस का जो इन्फिनाइट फास्ट पे गया, एंड डेट दिसंबर में 1952 में। फाइनली प्राइम मिनिस्टर सेड ओके यू कैन फॉर्म अ सेपरेट स्टेट दैट इज आंध्र स्टेट इन 1952। अब डू यू थिंक अराउंड द वर्ल्ड ऐसा होता है, उसको दे दिया हमें नहीं दिया, हो जाता है ना, छोटे बच्चे भी करते हैं। सो नाउ अराउंड द कंट्री एवरीवन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग फॉर द सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। नाउ ऐसा हो जाएगा कि साउथ इंडिया में इनको दे दिया, बाकी सब आसपास वाले चुप बैठ जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में चुप बैठ जाएंगे। नाउ एवरीवन हैज इश्यूज, एवरीवन चाहते थे कि जो टेरिटरीज लॉट की थी ब्रिटिशर्स ने, दैट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग द लिंग्विस्टिक बेस, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे बनाया था उन्होंने फॉर देयर ओन कन्वीनियंस। नाउ अराउंड इंडिया इस तरह के प्रोटेस्ट चलने लगे जैसे आंध्र प्रदेश में चला। तो गवर्नमेंट वाज लाइक फोर्स, दे वांटेड टू पोस्टपोन बट circumstances were such where they had to take decisions now. So the formation of Andhra support the struggle. इस स्ट्रगल को बहुत तेज कर दिया। सपोर्ट मतलब किस चीज को बहुत ज्यादा तेज कर देना उसकी रफ्तार। Struggle for making of the other states on linguistic lines in other parts of the country. तो इनको देखने के बाद मतलब अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सबने ये रेस करने शुरू कर दिए इश्यूज दैट वी आल्सो वांट अ सेपरेट स्टेट फॉर आवर पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। दिस स्ट्रगल forced the central government into appointing the state reorganization commission. याद रखना, स्टेट reorganization commission कब फॉर्म हुई, 1953। 52 में केरला बनी, फिर क्योंकि दिसंबर था तो लास्ट मंथ था, तो दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी, तो 1953 आ गया था। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, मतलब गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बनाया कि कौन सी स्टेट कहां पर होगी। दे फॉर्म्ड अ कमिटी व्हिच विल वर्क ऑन इट, व्हिच विल प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑन दिस थिंग, और उसके बाद फाइनल होगा कि कौन सी स्टेट्स कहां पे बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। तो ये एक कमीशन बना दी 1953 में टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग द boundaries of the state. The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. एक चीज को माइंड में रखा गया, जो बाउंड्रीज बनेंगी it should exactly reflect the language of that particular region. Okay. On the basis of its report, the State Reorganization Act was passed. Finally, they had finished their work, they had prepared their report, and they had presented their report in which year? In 19
56. So you have to remember 52 में आंध्र प्रदेश was formed, 53 में ये ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को बनाया. Then they worked on it. अब प्रिंसिपल क्या था? On the basis of the language उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था. And in 1956 finally they came with the report where they had distributed India into 14 states and 6 union territories. So you have to remember पहले कितनी थी? 14 states थी और कितनी? 6 union territories. So you must remember this. This can be marks 1 mark questions में जो आपको पता हो कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट. वो तो 27, 28, 29 कुछ भी लिख दोगे. So सबसे पहले जब रीऑर्गेनाइजेशन बना स्टेट का, उसने जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की तो उसने जिस बेसिस पे इंडिया को डिवाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग कितनी स्टेट्स बननी चाहिए? 14 and 6 union territories. You can see this cartoons आते हैं exam on the basis of the cartoon. Nehru, he is so pressurized by the people. This is showing the diversity of the country. ये देख रहे हैं अलग-अलग लोग कितने एग्रेसिव लग रहे हैं. ये एग्रेसिवनेस दिखा रही है कि how much pressure government was facing. This is Nehru here sitting and he is facing so much of pressure from the various linguistic people or from leaders of the various states where they were demanding an autonomy or a separate state on the basis of their language. This is showing इसी वजह से उन्होंने क्या फॉर्म किया हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसकी रिपोर्ट आई तो पता चल गया हमें कितने स्टेट्स बने, कितने यूनियन टेरिटरीज. Okay, then what happened? One of the most important concern in the early years was that demand for separate state would endanger the unity of the country. Now the other thing in mind, जो वो postpone करना चाहते थे हमने स्टार्टिंग में, उन्हें लगा हम स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया because circumstances were such, people were protesting. अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तो easily fractions हो जाते और भी. So अभी भी उनके माइंड में डाउट था that separate states तो बना दिए हैं, this would endanger the unity of the country. अब ऐसा ना हो कि पंजाब वाले लोग अपने को अलग ही समझने लगे, आंध्र प्रदेश अपनी लैंग्वेज की बेस पे अपने आप को अलग ही समझने लगे, तो यूनिटी की प्रॉब्लम उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि यूनिटी की प्रॉब्लम हो जाए इंडिया में. It was felt that linguistic state may foster separatism and create pressure on the newly founded nation. उन्हें लगा अब जो separate states को हमने recognition दे दिया on the basis of their language, अब ऐसा ना हो कि with passage of time ये pressure बनाने लगे और गवर्नमेंट के ऊपर और easily distribute हो जाए इंडिया. ठीक है, these were the questions in the mind of the government और the leaders, जो important leaders थे after the reorganization commission ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी. ठीक है, एक टाइप से उन्होंने काम कर भी दिया है but they are not sure about it. एंड क्यों किया वो काम? बिकॉज प्रेशराइज बहुत ज्यादा किया जा रहा था जो यहाँ से शुरू हुआ था और एक को दे दिया फिर बाकी को देना ही पड़ा. But the leadership under the popular pressure finally made a choice in favor of the linguistic states. It was hoped that if the accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separation would be reduced. Besides the accommodation of regional demands and formation of linguistic states were also seen the more democratic. बस साथ ये भी देखा गया कि it was important अगर linguistic base पे हमने divide कर दिया है, if we are living in a democratic country and people are demanding something which is good for them, for their proper overall growth, तो it was also important part कि democratic country में ये action लेना चाहिए. Although they were also worried कि इसकी वजह से separation ना हो जाए, separate ना होने लगे अलग-अलग states. ठीक है, with the passage of time अभी नहीं हो रहे, पर धीरे-धीरे वो strong ना होते जाए और जो हमारा new nation बना है अभी उसको ग्रो करने में प्रॉब्लम आएगी अगर स्टेट्स के बीच में यूनिटी नहीं हो पाई. बट फॉर्चुनेटली और किसी को लगता नहीं था इंडिया सर्वाइव कर पाएगा इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद, बट हमने उन सब क्रिटिक्स को क्या रॉन्ग प्रूफ किया है. आज मोर देन 70 इयर्स हो गए, वी आर लिविंग ऑल टुगेदर, यूनिटी है, डाइवर्सिटी है. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट. द इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर मुझे एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना है आपको. आई विल कंटिन्यू विद दैट.